Good afternoon, boys and girls. Welcome to your own channel, where we do surgical strike against difficult and complex editorials to help you understand them better and succeed in your exam preparation. So we are here to analyze the editorial for 16th April 2024. और like any other day, आज भी दो editorials हैं और इसमें से जो सबसे important है वो मैंने लिया है. That is the BJP's manifesto for Lok Sabha election 2024, and the manifesto is titled या घोषणा पत्र का विषय है Modi's guarantee, and they are pitching for continuity of Modi's government. And the manifesto is primarily a fine balance between the achievements of BJP and the promises for future. Before we move ahead, I know किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का जो दौर होता है वो काफी मुश्किल दौर होता है और जाहिर सी बात है कि उसमें कहीं ना कहीं और कभी ना कभी हर स्टूडेंट जो है वो थोड़ा लो फील करता है. तो जस्ट कीप यू गाइस अवेक, मोटिवेटेड एंड गोइंग. Let me share this quote with you that all the young boys and girls who are here and your friends as well, you are definitely braver than you believe, you're stronger than you seem, and you're smarter than you think. So never never lose belief on yourself and keep striking at the target, and I'm sure you will achieve your goals. अभी तक जितने हमने एडिटोरियल किया आपने देखा होगा जो मेरी स्लाइड्स थी वो थोड़ी सी डल, बोरिंग और वेरी बहुत कुछ फैंसी नहीं था उसमें. सो मुझे लगा उसका मुख्य कारण ये है कि जो बाकी चैनल्स हैं, दोज बिग edtech platforms, they have a lot of money, muscles, and infrastructure. So I certainly don't have all this, but what I have is a significant corporate experience. So and the skills which corporate in the armed forces has given me, or it gives to anybody. So I thought let me show a glimpse of those skills. क्योंकि कहीं ना कहीं जो वो skills हैं वो आप चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएं, हर जगह वो स्किल्स आपके काम आने वाली हैं. एंड these skills are nothing but primarily the skills of presentations in the form of PowerPoint presentation, Google Slides, etc., etc. So let's see today's editorial in the corporate format. So here it is, and BJP's manifesto for 2024. और इस manifesto में वो अपनी past 2 terms की achievements को highlight कर रहे हैं, अपने आने वाले term में वो क्या promises दिखा रहे हैं जनता को, and उनका vision क्या है country के लिए. So that includes the content of today's editorial as well as the manifesto. Let's move ahead and see what all is there in the manifesto. So सबसे पहले गवर्नमेंट ने अपने पिछले 2 टर्म्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है गवर्नेंस का उसको हाईलाइट किया है. राइट, क्या हाईलाइट किया वो हम देखेंगे, और उसके बेसिस पे वो जनता से 3rd टर्म मांग रहे हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ वन एंड ओनली मोदी जी. देन उन्होंने अपनी जो अकम्प्लिशमेंट है, वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनको हाईलाइट किया है मैनिफेस्टो में. और मैनिफेस्टो का एक बहुत अहम भाग है जो है प्रोमिसेस फॉर दिस कंट्री व्हिच बीजेपी इज डूइंग in as and conveying to the people as part of the manifesto कि वो क्या फ्यूचर चाहते हैं इंडिया के लिए. अब देखते हैं कि उन्होंने किन अपनी पास्ट अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया है इस मैनिफेस्टो में. तो सबसे पहले उन्होंने आर्टिकल 370 को हटाने को एक अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट के रूप में दर्शाया है. उनका कहना है कि दे हैव सक्सेसफुली रिवोक्ड आर्टिकल 370 टू इंटीग्रेट जम्मू एंड कश्मीर fully into Indian Union, thus ensuring equal rights and opportunities for everyone. Then inauguration of Ram Temple in Ayodhya, definitely एक landmark event है. We all know its importance considering that a large portion of this country is Hindu, and it's a Hindu majority country, and it was a long overdue promise which was fulfilled by this government. So that definitely would have been part of manifesto and definitely is part of the manifesto. Now they are promising that if they come back, they will also work on the uniform civil code, though they have already started working on it in some states. They've already rolled out, but they will do it for the entire country. Then they have highlighted the welfare scheme जो पीछे terms में गवर्नमेंट चला रही है, जैसे कि फ्री राशन, देन पाइप ड्रिंकिंग वाटर, नल से जल, और हाउसिंग की स्कीम को भी उन्होंने हाईलाइट किया है जो भी उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो भी गरीबों के लिए, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए जो वेलफेयर चलाई हैं उनको वो अपनी अचीवमेंट्स के रूप में हाईलाइट कर रहे हैं इस मैनिफेस्टो में, व्हिच हैज बीन कवर्ड इन दिस एडिटोरियल. देन जो उनके एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द डाउन ट्रॉडन, उसमें वो कहते हैं कि जो भी उनकी स्कीम्स हैं उसकी वजह से 25 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं. तो वो भी एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट के रूप में इस मैनिफेस्टो में आया है. चलिए आगे देखते हैं और वो क्या कह रहे हैं इस मैनिफेस्टो के माध्यम से. ओके, अब 2 और पक्ष हैं जिसको इस मैनिफेस्टो में जगह दी है. वो है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का इंक्लूजन इन द सोसाइटी एंड वुमेन ओरिएंटेड वेलफेयर स्कीम्स. सो वुमेन ओरिएंटेड सोशल जस्टिस और वेलफेयर में वो कह रहे हैं कि हमने जो ट्रिपल तलाक का जो क्रिमिनलाइजेशन किया है, that they're showing as a great achievement which is dedicated to social justice and reforms towards gender equality, ensuring the protection of women's rights. Then
अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो वो हाईलाइट कर रहे हैं वो है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का इंक्लूजन। अब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप किसे बोला जा रहा है? सो दीज आर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड दलित्स, and they're saying that they have increased the inclusion of the community in every form of the government or every sector of the government or every organization of the government. In fact, manifesto में कहा गया है कि 60% जो आउटगोइंग काउंसिल के मिनिस्टर्स हैं वो इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को टारगेट करने की या उन तक पहुंचने की भी एक लालसा जो है इस मैनिफेस्टो के द्वारा बीजेपी दिखा रही है। ओके, अब वो और क्या हाइलाइट करते हैं कि बीजेपी को क्यों आना चाहिए थर्ड टर्म में। उनका कहना है कि जिस दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है, जिस डिफिकल्ट दौर से, वी सी दैट वेस्ट में लड़ाई चल रही है, एवरीवेयर देयर इज नो, मिड ईस्ट इज बॉइलिंग, वेस्ट एशिया इज बॉइलिंग, देयर इज लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज गोइंग ऑन। तो बीजेपी का कहना है कि ऐसी स्थिति में भारत को एक मजबूत और सशक्त एंड मेजॉरिटी सरकार की जरूरत है, इसलिए भी इंडियन जनता को बीजेपी को थर्ड टर्म का मौका देना चाहिए। ओके, अब उनका प्रॉमिस क्या है? अगर हिंदुस्तान की जनता उनको वोट देके चुन के लाती है, तो वो क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? तो उनके प्रॉमिसेस कुछ इस प्रकार से हैं। वो सबसे पहले कहते हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए वो एक हेल्थ केयर स्कीम लाएंगे, जहां पे उन्हें 5 लाख का कवर दिया जाएगा। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड scheme because no, generally senior citizens को हेल्थ कवर मिलता नहीं है बिकॉज ऑफ एज। मोस्ट ऑफ दी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं नो अवॉइड करती हैं सीनियर सिटीजन्स को कवर करना, एंड वंस यू रीच दैट, a majority of senior citizens in India don't have any pensionary support and all, तो हेल्थ केयर और भी मुश्किल हो जाता है उनके लिए। एंड इंडिया हैज अ सिग्निफिकेंट एजिंग पॉपुलेशन। तो इन सबके मद्देनजर मुझे लगता है दिस इज अ गुड स्कीम वेयर गवर्नमेंट विल प्रोवाइड हेल्थ कवर ऑफ ₹5 लाख। मे बी आयुष्मान भारत के अंदर ही शायद इनको कवर कर लेंगे, या हो सकता है कोई और इसकी मोडालिटी क्या होगी वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगी, बट एज ऑफ नाउ दे आर प्रॉमिसिंग दिस। देन दे आर आल्सो सेइंग दैट विल इंक्रीज द रिजर्वेशन फॉर वुमेन। कोई परसेंटेज की बात नहीं की है, बट ये कहा है उन्होंने, और किसी सेगमेंट की रिजर्वेशन की बात नहीं की उन्होंने। हाँ, लेकिन उन्होंने ये हाइलाइट किया है कि जो 10% रिजर्वेशन उन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया है, उसको उन्होंने हाइलाइट किया, और वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लाने की बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहीं भी कास्ट सेंसस या नेशनल रजिस्टर ऑफ पॉपुलेशन की बात नहीं की है, व्हिच इज गुड थिंग बिकॉज़ ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, एंड आई थिंक कांग्रेस हैज नो इंक्लूडेड इट इन मैनिफेस्टो, बट आई थिंक इट्स अ स्मार्ट मूव टू स्टीयर अवे फ्रॉम कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। नाउ आप बीजेपी किस सेगमेंट को टारगेट कर रही है? बिकॉज अनलेस यू आर फोकस्ड, यू आर स्पेसिफिक, यू आर नॉट गोइंग टू विन एनी रेस, एनी एग्जाम और एनी कैंपेन, एंड श्योरली यू कैन नॉट विन एन इलेक्शन व्हेन यू आर नॉट फोकस्ड एंड यू आर नॉट टारगेटिंग। सो बीजेपी वेरी स्मार्टली हैज कॉइन्ड अ न्यू टर्म कॉल्ड ज्ञानम। मुझे लगता है आपको अपनी वोकैबुलरी में ये वर्ड ऐड कर लेना चाहिए, ज्ञानम। एंड ज्ञानम स्टैंड्स फॉर ग्रामीण, युवा, अन्नदाता, नारी एंड द मिडिल क्लास। सो इन अ वे इस मैनिफेस्टो के द्वारा या एक बहुत ही ब्रॉडर सेगमेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को बीजेपी ने कवर कर लिया है। So Grameen, definitely 70% of the country still resides on the countryside. Then youth is an aggressive voter and they expect a lot. So if government is covering or focusing there, I think that's a good move. Annadatta farmers, Nari, definitely they have also asked, proposed for increasing reservation. They have already implemented the 33%. Maybe there's more coming for women. And middle class, generally this class has been overlooked, but it's good that no, somebody has thought of including them in their manifesto. एंड द सेकंड एलिमेंट जिस पे वो बात कर रहे हैं वो कंटिन्यूड ट्रैजेक्टरी, यानी बीजेपी का कहना है कि जो हमने 10 साल में जो ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी सेट की है, इंडिया के सक्सेस की या प्रोग्रेस की जो ट्रैजेक्टरी सेट की है, उसको कंटिन्यू करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट द पीपल ऑफ दिस कंट्री नो चूज बीजेपी टू कम बैक इन सीजन 3। सो ब्रॉडली इस एडिटोरियल या मैनिफेस्टो में यही चीजें कवर की गई हैं। अब एज यूजुअल जो हम डिफिकल्ट वर्ड्स कवर करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द डिफिकल्ट वर्ड्स। So I'm sure I know you are motivated as always. And with this, let's move on to the difficult words. कुछ देख लेते हैं जिनके बिना इस आर्टिकल को या इस एडिटोरियल को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मैनिफेस्टो, ये पूरा एडिटोरियल ही उसके अराउंड है। मैनिफेस्टो किसी भी पॉलिसी स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन, प्रोक्लेमेशन। देन मैंडेट यानी अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, अथॉरिटी। यहाँ पे मैंडेट का कॉन्टेक्स्ट ये है कि बीजेपी जा रही है पब्लिक के पास सो दैट पब्लिक कैन गिव देयर अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, सो दैट दे कैन कम इन पावर इन सीजन 3। देन स्टीयर्स, इसका मतलब होता है गाइड करना, नेविगेट करना, डायरेक्ट करना। सब्सटेंटिव का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, मीनिंगफुल। बैकड्रॉप, इसका मतलब होता है परिपेक्ष, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में, सेटिंग्स में, बैकग्राउंड में बात, या मैनिफेस्टो किस बैकड्रॉप में आया है, किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। ये मैनिफेस्टो आया है 2024 के लोकसभा इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। अगर ये इलेक्शन नहीं होते तो ये मैनिफेस्टो भी नहीं आता। सो दैट्स हाउ नो द कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड एंड सेटिंग, दैट्स द मीनिंग ऑफ बैकड्रॉप। अंडरस्कोर्स, ये वर्ड हमने पहले भी अपने एडिटोरियल में डिस्कस किया है। इसका मतलब होता है किसी चीज को एम्फसाइज करना, हाईलाइट करना, ब्रिंग आउट करना। कुछ और वर्ड है, उनको देख लेते हैं। So okay, we have now campaign.
अब कैंपेन का मतलब होता है कोई भी प्रोजेक्ट, इनिशिएटिव, मिशन, कैंपेन आप एडवर्टाइजमेंट्स को भी कुछ लोग कैंपेन बोलते हैं। तो कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं उसके बारे में आप जो भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मिशन बना रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैंपेन। लाइक यहाँ पे पॉलिटिकल कैंपेन्स की बात की गई। आप देखते हैं जो भी रैलीज़ होती हैं, स्पीचेज़ होते हैं, दीज़ आर ऑल पार्ट ऑफ अ कैंपेन। कैंपेन एंड कैंपेन्स का मिशन क्या है? टू विन द इलेक्शन। Now, core means essential, epicenter, central theme of anything is called core. Core business, core principles, core thought process, core ideology. Catalog का मतलब होता है inventory, record, register. Brochure, trajectory का मतलब होता है path, route, orbit, trajectory of growth, trajectory of success, trajectory of missile, trajectory of rockets, path, orbit. कंटेंशियस यानी कोई भी ऐसी चीज जो कंट्रोवर्शियल हो, डिस्प्यूटेबल हो, डिबेटेबल हो। विजन का मतलब यहाँ पे विजनरी से रिलेटेड है, यानी लॉन्ग टर्म गोल्स, फार साइटेडनेस, फोरसाइट। आपका विजन क्या है? आपका विजन हो सकता है, योर विजन इज नॉट जस्ट टू क्लियर दिस एग्जाम। ये आपका एक छोटा सा गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है। विजन कुड बी दैट यू वांट टू बी द बेस्ट लॉयर in the country, you want to be the best engineer in the country, the best player of the Indian team. So these are long termish goal vision, and then there are short term goals. So I think we are done for this editorial. And once again, I'll say that believe in yourself and keep rocking, as you're the best creation of God. And you don't have to worry because Prabhu is with you. So you जब डरने की क्या है बात, जब प्रभु है आपके साथ. So just be focused and keep believing in yourself. Take support from the family and have a focused approach to your goals. That's all. And stay hungry for knowledge. And this is the place you have to come back for, the best analysis of any editorial. So thank you so much once again. Have a great day. Jai Hind, Jai Bharat. Take good care of yourself.